Good morning to everyone. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta. Today is the 1st May and you know that today is a Labor Day. Our Labor Day भी है. And one more thing, today weather is also very good. वेदर भी बहुत अच्छा है, ठीक है. सो चाय पकौड़े बना के और बैठ जाइए क्लास लेने. लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. और हो सके तो चाय पकौड़े मेरे लिए भी भेज दीजिएगा. सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सी टॉपिक्स ऑफ टुडे एंड स्टार्टिंग द टॉपिक चाहिए. वी रिक्वायर एनर्जी एंड आई प्रोवाइड यू द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द फ्यू लाइन्स. कुछ लाइन्स के हेल्प से आई प्रोवाइड यू द एनर्जी. सी व्हाट द ब्यूटीफुल लाइन टुडे इज़. कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है. जैसे इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट इज़ दिस, पेंडेमिक कंडीशन है, लॉकडाउन टाइम है, तो वी आर स्ट्रगलिंग बट वी आर गोइंग टू मेक आवर फ्यूचर ईजी so that there should not be so many death take place. We so many people are facing problem, but why they are facing problem, why they are struggling, why they are having keep calm, because they know that what will be the consequences if they will not follow these rules. Clear? So same as with the student life. In the student life too, whenever you are going to to crack the NEET exam and so many different competitive exam, if you are not going to prepare from today, if you are not going to start from today, there will be a difficulty for you tomorrow, ठीक है. सो कल के लिए आज ही से कड़ी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं विद दिस मोटिवेशनल लाइन. एंड व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे ये देख लेते हैं. यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी hierarchical system. We discuss about the hierarchical system in the taxonomy. Then I told you about the SGFOCPK. I told you a trick, SGFOCPK. With this trick you can learn the category, you can learn the sequence of the categories in a very easy manner. Clear? Then I explain you what is species, what is genus, family, order, class, phylum, kingdom. Everything is clear. I provided you the slides by which you can prepare the notes too, ठीक है. नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो. एंड आई थिंक आई मेड द थिंग्स ईजियर. if you are having any doubt, still if you are having any question regarding those topic, please write down in the comment box, ठीक है. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना एंड आई विल सॉल्व दोज डाउट इन द नेक्स्ट क्लास. मैं उन डाउट्स को आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म है क्लियर कर दूंगा, ठीक है. बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट वेयर वी गेट टू नो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, हाउ डू वी डू क्लासिफिकेशन, ठीक है. क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, व्हाट इज़ हायरार्किकल सिस्टम, व्हाट आर द कैटेगरीज इन द केस ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, हाउ डू वी यूज़ दीज कैटेगरी, इन कैटेगरीज को कैसे यूज़ करते हैं, एवरीथिंग. what is the meaning of species. By taking example of the human being, I told you everything कि what is the meaning of मतलब each and every category. Each and every, there is a particular characteristic of the each and every category. Suppose yesterday I told you about the class Mammalia. So class is what? Class is a taxa, means it is a taxonomical category. If it is category, there will be some characteristic of this category. Mammalia, you know that the mammary gland, they will feed their baby on their milk, and other characteristic too. They will have the 4th chamber in the heart. They will have the hair on their body. They are viviparous. They give the birth to the baby. Exceptional are there 2 animals are they lay egg, that you will study in the next chapter. Clear? So what I just want to communicate you that if every category just has the some characteristic, and whatever organism we classify in that category, they should follow those characteristic. Means we have to match the characteristic with the particular category, and then we can just group that organism in particular category. Clear hai? Like as we can classify the fishes in the class Mammalia. Why? Because fishes lay egg, first thing. They don't feed their baby on their milk. But what about the whale? We don't classify the whale in the fishes. We don't call the whale as a fish. Whale comes in the category of Mammalia. What is the class of whale? That is Mammalia. Being it is an aquatic animal, but it falls in the category of what? Mammalia. Clear है? ठीक है. तो now I think you understood what I want to communicate you. Species, then genus, then family, everything I explained you. Now we are going to discuss about the taxonomical aid. ठीक है. What are taxonomical aid? देखो, first you should understand what is aid. One AIDS word is also there, acquired immunodeficiency syndrome. That is a sexually transmitted disease, but no relation of this AIDS to that AIDS. Clear?
Here the aid means like as if you are learning, if you are getting the classes, what are the teaching aid? Are the teaching aid we as a teacher use to make you understand? We use different type of different projectors, screen, chalk, blackboard, and so many charts, paper, whatever things we use to make you understand, to make you teach, those all fall in the category of aid. Clear? Like as you, I think you have you listen this word government aid. मतलब how the government facilitate you, how the government will help you. Same as what are the things that help you in help us to teach you. Those all are known as what? Teaching aid. Same as there are so many we can say there are so many things, there are so many parts that help in the taxonomy. ठीक है? Like as when you visit the bio lab, whenever you will visit the biology lab, then you will get to know there are so many specimens are there. Specimens means we don't have the live animals, but we have the preserved animals. So many animals that we cannot see, like as a starfish you cannot see ever. You can see the fish, you can see the frog, you can see the snake, but you cannot see the sea starfish, you cannot see the pileia, you cannot see the sponge. That's why we have the specimen, we have the preserved form of those animals in our lab, so that we can show you, you can understand, you can identify them, you can just get to know about their characteristic. उनके characteristic को क्या कर सकते हो? जान सकते हो. तो those specimen are acting as a aid. वो आपको क्या कर रहे हैं? aid कर रहे हैं, मतलब वो आपको facilitate कर रहे हैं, आपको help कर रहे हैं identification में, classification में. That's why those all preserved animals kept in the biology lab, they all are known as what? Taxonomical aid. उनको हम क्या बुला सकते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड बुला सकते हैं. लाइक एज इफ़ यू हैवंट सीन एनी बर्ड, इफ़ आई शो यू द फोटो ऑफ एनी बर्ड और आई शो यू द स्टफ एनिमल, मतलब आई शो यू द फॉल्स एनिमल, द मॉडल ऑफ द एनी एनिमल, देन हाउ विल यू व्हाट विल यू गेट टू नो? आपको क्या पता लगेगा वहाँ से? यू विल गेट टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एनिमल विच यू हैवंट सीन लाइव, जिसको आपने लाइव नहीं देखा है. ठीक है? Like you visit any garden, if you visit any botanical garden, then you will get to know about different plants, those you don't see in your daily life, जो हम daily life में नहीं देखते. Then we get to know about different type of plant, उनके बारे में हमें information मिलती है कि yes these type of plants are also there and we can identify them, we can get to know their characteristic. उनके characteristic हमें क्या लग सकते हैं? पता लग सकते हैं. Clear है? तो what is the use, what are taxonomical aid? It is clear now. And how they facilitate in the taxonomy? Because taxonomy is totally based on the identification, then classification. If you are not able to identify, you cannot classify. अगर आप identify नहीं कर सकते तो then you cannot classify. Like sometimes we get so many amazing animals, strange animals. ठीक है? That we think that in which category it will fall. ठीक है? जैसे अगर हमें कोई अमेजिंग स्ट्रेंज एनिमल मिल गया जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आइडेंटिफाइंग, वी जस्ट मैच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एनिमल टू नोन एनिमल. कोई भी अगर आपको एनिमल पता है तो उससे उसके कैरेक्टरिस्टिक को मैच करते हो. अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक उस नोन एनिमल से मैच कर गए तो आप कहते हो कि येस इट मतलब इट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी ऑफ द नोन एनिमल. क्लियर है? समझ में आया? ठीक है? जैसे अगर मान लो कोई कहीं पे खो गया है, ठीक है, अगर कहीं पे कोई इशू है ऐसा कि कोई अगर कहीं पे किडनैप हो गया, खो गया, अगर वो मिल गया, तो अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे 10 देयर आर 10 सस्पेक्ट्स, 10 लोग हैं, 10 लोगों में आपको मैच करना है कि वो पर्टिकुलर पर्सन किस पर्सन को बिलोंग करता है, तो आप क्या मैच करोगे? नाउ इन दिस टेक्नोलॉजी फील्ड वी मैच डीएनए. इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम क्या मैच करते हैं? डीएनए मैच करते हैं. अगर वो डीएनए उससे मैच कर जाता है तो वी गेट टू नो कि ये जो है पर्सन जो है वो इस पर्सन की फैमिली को बिलोंग करता है. ठीक है? जैसे बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होती है जहाँ पे डेड बॉडीज़ मिलती हैं. उन डेड बॉडीज़ को हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये डेड बॉडीज़ किसकी है. तो फैमिली मेम्बर्स क्लेम करते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर का, हमारी फैमिली का कोई एक मेम्बर वॉज ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन. तो हम क्या करते हैं? उनके डीएनए को ट्रेस करते हैं. उन डीएनए को जो नॉन फैमिली है उनसे हम ट्रेस करते हैं, उनसे हम मैच करते हैं, जिससे भी वो डीएनए मैच कर जाता है उन बॉडी को हम उसको हैंड ओवर कर सकते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर identifying on basis of what? On the basis of DNA. Same as we can identify any organism
to match the characteristic of that organism to the known organism. So that's why we require known, हमें कुछ organism की ज़रूरत पड़ेगी, समझ में आया, ठीक है. दैट्स वाई दिस इज़ द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द टैक्सोनॉमिकल एड. ये टैक्सोनॉमिकल एड की नीड है. सो आई हैव रिटन हियर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल. उनकी कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होंगे? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है. नोइंग देयर बायो रिसोर्सेज, क्योंकि हमें उनके बारे में पता लगेगा, देयर डाइवर्सिटी. दीज स्टडीज़ रिक्वायर करेक्ट प्रोसीजर. अगर हम इनको चाहते हैं कि हाँ इनके बारे में हमें पता लगे, तो हमें करेक्ट प्रोसीजर के थ्रू हमें वर्क करना पड़ेगा. जैसे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसके लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. और वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? हमें स्पेसिमेन से मिलेगी, हमें लाइव एनिमल से मिलेगी, प्लांट से मिलेगी. जैसे एनीबडी हैज़ नॉट सीन डायनासोर लाइव, किसी ने डायनासोर को लाइव नहीं देखा है. देन दे यू नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायनासोर. आपके दिमाग में एक डायनासोर की एक पिक्चर है कि दैट वाज अ वेरी ह्यूज एनिमल था. उसके स्केलेटन कहीं पे रखे गए हैं, म्यूज़ियम में रखा गया है. उसका कोई मॉडल बना के रखा जाता है कि उसकी टेल भी होती थी. उसके लिए बहुत सारी मूवीज़ भी आ गई हैं. तो आप क्या करते हो? डायनासोर को रिलेट करते हो कि डायनासोर के कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे. Sometime you see a movie, you just get to know that some dinosaur could fly, मतलब वो फ्लाई भी कर सकते थे, उड़ भी सकते थे, ठीक है. तो आप क्या कोरिलेट कर रहे हो? इसका मतलब वो बर्ड की तरह थे, ठीक है. कुछ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायनासोर मैच विद द रेप्टाइल प्रेजेंटेड एज. और रेप्टाइल जो है, क्रोकोडाइल जो है, जो लिजर्ड है, ठीक है. तो आप क्या कहते हो? ये तो रेप्टाइल की भी तरह है. क्लियर है. तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दोनों से मैच कर रहे हैं. इसका मतलब है कि डायनासोर जो है वो क्या था? डायनासोर रेप्टाइल था, बट उसमें दैट हैज़ द कैरेक्टर, दैट हैड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्ड्स आल्सो. उसके पास बर्ड्स के भी क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक थे. क्लियर है. तो इन दिस वे वी द टैक्सोनॉमिकल एड फैसिलिटेट अस इन आइडेंटिफिकेशन, इन क्लासिफिकेशन. क्लियर है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड. हम डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वन, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ हर्बेरियम. हर्बेरियम, you can prepare the herbarium file. Nowadays you are at your home, you can collect the different leaves of the plant, different plant, like as you collect the tulsi leaf. अगर आपने तुलसी का प्लांट है आपके घर में, तो तुलसी की लीफ को आपने प्लक कर लिया, ठीक है. उसको क्या कर लिया? दैट यू हैव टू मेक इट ड्राई. अब उसको ड्राई इन द सेंस उसको प्रेस से ड्राई नहीं करेंगे, उसको किसी बुक के में पेजेस के बीच में उसको रख देंगे. यू विल पुट दैट लीफ इनटू बिटवीन द पेजेस, उसको पेजेस के बीच में रख दोगे, ठीक है. देन आफ्टर फ्यू डेज, कुछ मंथ के बाद या कुछ डेज़ के बाद, व्हाट विल यू फील? यू विल फील दैट द लीफ विल बिकम ड्राई. नाउ यू विल दैट पेस्ट दैट लीफ ऑन द शीट ऑफ द हर्बेरियम फाइल. हर्बेरियम फाइल्स होती है, उसमें शीट्स लगी होती है, उसमें उसको पेस्ट कर दोगे. एंड यू विल राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक द लीफ ऑफ द दैट प्लांट. उस प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको उसमें लिख दोगे. अब सपोज़ अगर मान लो ये 2020 है, ठीक है, कोई 200 या 500 साल के बाद अगर उस फाइल को खोलेगा तो उसको क्या पता लगेगा कि इस टाइप के भी प्लांट होते थे या इस टाइप की भी लीफ होती थी, ठीक है. और उनसे वो कोरिलेट कर सकता है उस टाइम के प्रेजेंट प्लांट से. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कलेक्टिंग द डिफरेंट प्लांट, वी कैन कोरिलेट देम, उनको कोरिलेट कर सकते हैं. एंड वी कैन आइडेंटिफाई देम, ठीक है. व्हेन वी विल कलेक्ट द डिफरेंट लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट, देन वी विल गेट टू नो अबाउट देयर सिमिलरिटीज़. उनकी सिमिलरिटी के बारे में पता लगेगा, डिफरेंसेस के बारे में पता लगेगा. एंड उससे हमें किस में हेल्प करेगी? दैट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन. And we can identify, like as if you identify one of the mango plant, you can identify other mango plant too, because you correlate them. उसको correlate कर लेते हो, उसकी leaf को match कर लेते हो, ठीक है. तो herbarium is what? Herbarium is also a taxonomical aid in which that is a storehouse of the plant. Mostly herbarium is used for the plant, not for the animal. In this, specimen means whatever leaf, whatever part of the plant you are going to preserve, that should be dry. उसको dry कर लेते हैं, उसको प्रेस कर लेते हैं. प्रेस इन द सेंस किसी बुक के पेजेस में रख के या टिश्यू पेपर में रैप करके, प्रिजर्व्ड इन शीट, उनको शीट पे प्रिजर्व कर लेते हो. दीज शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है. जब आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, देन यू विल कम टू नो कि हाउ कैन वी प्लेस, हाउ कैन वी अरेंज दोज शीट्स, उन शीट्स को कैसे अरेंज कर लेते हैं. एंड दीज स्पेसिमेन विल बिकम अ गुड. अब ये स्टोर हाउस हो गया, हर्बेरियम क्या हो गया आपके लिए? स्टोर हाउस हो गया. अब सपोज एनी लैब इज़ देयर, एनी इंस्टीट्यूट इज़ देयर वेयर
मतलब लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हर्बेरियम शीट्स आर देयर. इन दोज हर्बेरियम शीट्स रेयर टू रेयर प्लांट्स आर देयर. उनके हर्बेरियम शीट्स में रेयर टू रेयर प्लांट्स के क्या लगे हुए हैं, उनके पार्ट्स लगे हुए हैं. दे प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स वर देयर एंड व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर. अब कैसे प्लांट है, पहले कैसे प्लांट होते थे, समझ में आया. तो इन दिस वे हाउ व्हाट हर्बेरियम इज़ हेल्पिंग अस इन द आइडेंटिफिकेशन, एंड इफ देयर इज आइडेंटिफिकेशन वी कैन हेल्प, वी कैन टेक द हेल्प इन द क्लासिफिकेशन. हम क्लासिफिकेशन में भी उसकी हेल्प ले सकते हैं. समझ में आ गया हर्बेरियम क्या है, कि हर्बेरियम का क्या यूज़ है. ठीक है, क्लियर हो गया. हर्बेरियम आप बना भी सकते हो. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि यू कैन कलेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक एज लीफ, फ्लावर, रूट, स्टेम, एंड यू कैन मेक इट ड्राई. उसको ड्राई करके देन यू कैन जस्ट कीप इट विद यू. आप उसके साथ रखे रहिए. जब भी वेन एवर देर विल बी अ नॉर्मल सी, when there will be a lockdown will open, then we will discuss about that कि how can you prepare the herbarium file, but you start collecting the specimen. ठीक है. Now come to the next one, botanical garden. When you get the time, then whenever the everything will normal, then please have a visit, मतलब just go to visit and in the Lucknow. In the Lucknow there is an institute that is national NBRI. लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है NBRI. full form of NBRI is National Botanical Research Institute. This is a botanical garden. Botanical garden means you know that botany deal with the biology. In the botany we study about the plant. हम botany में क्या पढ़ते हैं, plant के बारे में पढ़ते हैं. तो botanical garden में there will be no animal, only there are plants होंगे. ठीक है. प्लांट्स को हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे हमने अपने गार्डन में बहुत ढेरों सारे प्लांट्स क्या कर रखे होते हैं, उनको हमने नर्सरी डेवलप कर रखी होती है. बहुत ढेरों सारे प्लांट हमारे गार्डन में होते हैं. बट बॉटेनिकल गार्डन में रेयर टू रेयर प्लांट्स होंगे. ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको आपने कभी नहीं देखा, जिनके बारे में सुना है, जिनके बारे में बुक्स में पढ़ा है. ठीक है. यू विल गेट टू नो अबाउट द सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट एंड हाउ दे आर डेवलप देयर, कैसे उनको उनकी कंडीशन में डेवलप करते हैं. ठीक है. कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको शेड में डेवलप करते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके लिए वाटर, मतलब फ्रीक्वेंटली वाटर चाहिए होता है, तो वाटर कैसे स्प्रिंकल करते हैं. तो you will get the different type of plant in the botanical garden and they will provide you the information about different type of plant and then you can correlate them. उनको correlate कर सकते हो, उनकी help ले सकते हो in the taxonomy. तो that's why botanical garden is also a taxonomical aid. ठीक है. I have given you the name of few botanical garden. Famous botanical garden Kew, that is in England. Then next two are in our country, that is Indian Botanical Garden Havra. ठीक है. एंड नेशनल NBRI एज आई टोल्ड यू इन लखनऊ. तो वेन एवर यू गेट टाइम यू कैन विजिट टू लखनऊ एंड इन द NBRI एंड you will feel very good when you will come to know about different type of plant that you have studied in your books but you haven't seen those plant ever. Clear? So this is about the botanical garden. Now come to the next one. After botanical garden museum is there. वैसे तो म्यूज़ियम फॉर डिफरेंट थिंग्स आर देयर. बहुत सारी चीज़ों के म्यूज़ियम होते हैं. वेपन्स के म्यूज़ियम होते हैं, पिक्चर्स के म्यूज़ियम्स होते हैं. ठीक है. बहुत सारे ऐसे कैसेट्स के म्यूज़ियम होते हैं. जैसे अभी सिनेमा है तो सिनेमा में भी अपने अपने म्यूज़ियम लगाता है, अपने अपने म्यूज़ियम बनाए रखे होते हैं. ठीक है. जो पहले हमारे एंसेस्टर जो है वो क्या यूज़ करते थे, वेपन्स यूज़ करते थे, उनके भी म्यूज़ियम होते हैं. सेम एज द म्यूज़ियम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो देयर. ठीक है. मोस्टली जैसे अभी मैंने बताया ना, हमारे लैब में क्या है, बायोलॉजी लैब में क्या है, स्पेसिमेंस है. तो वो स्पेसिमेंस आपको किस तरह वो कैसे हमारी जो लैब है वो किस तरह ऐड कर रही है, म्यूज़ियम की तरह. उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हमने प्रिजर्व फॉर्म में रखे हुए हैं. तो मोस्टली म्यूज़ियम में एनिमल्स को प्रिजर्व फॉर्म में रखते हैं. ठीक है. लाइव एनिमल्स नहीं रखते यहाँ पे, या प्लांट नहीं रखते. तो म्यूज़ियम हैव द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. ऐसे भी प्लांट वहाँ पे मिलेंगे आपको म्यूज़ियम में. दे गॉट एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. नाउ दे आर नॉट प्रेजेंट. अब वो प्रेजेंट नहीं है. जैसे यू विल गेट टू नो द स्केलेटन ऑफ द डायनासोर इन द म्यूज़ियम. यू विल गेट टू नो अबाउट द आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड. 10th में आपने पढ़ा है ना, टूथेड बर्ड. ऐसी बर्ड थी जिसके पास टूथ होते थे. हो सकता है उसके भी कोई स्टफ एनिमल, उसका कोई मॉडल रखा हो वहाँ पे. ठीक है. तो सेम एज देर आर सो मेनी एनिमल्स एंड प्लांट specimens are there, their preserved form is there, that is rare, though rare है, and you will get the information in the museum. आपको म्यूजियम में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अब देखो स्पेसिमेन को करते क्या, जैसे अगर इफ़ यू विजिट द बायोलॉजी लैब देन यू विल कम टू नो दैट एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द जार, in the glass jar,
एंड वी यूज़ सम केमिकल्स लाइक एज इन द बायोलॉजी लैब वी यूज़ फॉर्मेलिन। हम एक केमिकल का यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड, दैट प्रिजर्व द एनिमल, मतलब इसमें एनिमल को रखने पर एनिमल रोट नहीं करते, मतलब सड़ते नहीं हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि वी कैन यूज़ डिफरेंट केमिकल्स, हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जार या कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। प्लांट को हम ड्राई करके उसको कर सकते हैं, जैसे अभी आपने हार्बेरियम में देखा, सेम एज प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को ड्राई करके रख सकते हैं। जैसे बहुत पुरानी मूवीज़ में, अब तो ऐसा बैन हो गया है, बहुत पहले जब हंटिंग लोग करते थे, किंग हंटिंग करते थे, तो जो एनिमल्स मिलते थे, जैसे लायन के स्किन है, तो लायन के स्किन का एक मॉडल बना के रखते थे, आपने देखा होगा डिफरेंट पैलेसेस पे, तो वहाँ मॉडल रखे होते हैं, एनिमल के मॉडल रखे, उनके ऊपर रियल स्किन उन्होंने लगा रखी होती है। तो वो है क्या, वो स्टफ़ एनिमल है, मतलब जो एनिमल का अंदर का जो पार्ट है वो सब उन्होंने निकाल दिया, उसको ड्राई कर लिया, और ऊपर का जो पार्ट है वो कवरिंग है, उसके अंदर उन्होंने कॉटन भर दिया, और उसके अंदर उन्होंने कपड़े भर दिया, और वो स्टफ़ एनिमल हो गया। तो वो भी क्या है, इस तरह से भी हम एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको अपने म्यूज़ियम में रख सकते हैं। इंसेक्ट को रखने के लिए अलग बॉक्सेस होते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस जिसको बुलाते हैं, उसमें वैक्स लगा होता है, वैसे मोस्टली उसमें वैक्स लगा होता है, मोम लगा होता है। हम इंसेक्ट को किल करके उसको उसमें पिन करके, मतलब उसको ड्राई कर लेते हैं, किल करके ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद उस इंसेक्ट को उसमें हम पिन कर लेते हैं, और वो एक बॉक्स हो जाता है, दैट इज़ नोन एज इंसेक्ट बॉक्स। क्योंकि इंसेक्ट को अगर आप ऐसे रखोगे तो इंसेक्ट जो है धीरे धीरे वो फेड अप हो जाएंगे, ठीक है। लार्ज एनिमल्स का मैंने ऐसे जैसे अभी बताया, स्टफ़ के फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़ियम ऑफन हैव द कलेक्शन ऑफ स्केलेटन, जैसे डायनासोर का स्केलेटन या और भी बहुत सारे एनिमल्स का स्केलेटन वहाँ पे मिल सकता है। समझ में आया? तो दीज आर द टैक्सोनॉमिकल एड। ये सब क्या है, हम व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड। तो ये 2 या 3 टैक्सोनॉमिकल एड आज हमने डिस्कस किए, ठीक है। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू द टास्क, फाइंड आउट अबाउट द बॉटेनिकल गार्डन, अदर बॉटेनिकल गार्डन 3 आई गेव यू, राइट डाउन द अदर रेस्ट, और भी बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन होंगे, उनके नाम लिखो, ठीक है। म्यूज़ियम के नाम लिखो, क्या क्या कौन कौन कहाँ पे म्यूज़ियम्स होते हैं, ठीक है, म्यूज़ियम के नाम लिखो। हर्बेरियम फाइल, जैसे मैंने अभी आपको एक टास्क दिया, इसके पहले भी मैं आपको एक टास्क दे चुका हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, ठीक है। वट एवर थिंग्स आर देयर दैट यू आर यूज टू, 1 वीक के अंदर जितने भी आपके साथ प्लांट एनिमल के साथ आप फैमिलियर हो जा रहे हो, उनके बारे में जान जा रहे हो, उनका साइंटिफिक नेम आप पता लगाओ, उनको एक नोटबुक में अपने लिखो, देन आई विल टेल यू कि हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, ठीक है। तो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम और यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट। अगर आपको कुछ और चाहिए, यू रिक्वायर एनी अदर थिंग, देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल ब्रिंग दैट सेम इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट क्लास, क्लियर। तो टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।